السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیل اور کھلاڑیوں کی تازہ ترین خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نیا سنگ میل عبور، 100 انڈیکس میں 2202 پوائنٹس کا بڑا اضافہ، مارکیٹ پہلی بار 1,36,502 کی بلند ترین سطح پر بند۔ ملک معاشی استحکام کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن، سٹاک مارکیٹ کا تاریخی سطح پر پہنچنا کاروباری برادری کا حکومتی معاشی پروگرام پر اعتماد کا مظہر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اظہار مسرت، تاجر برادری کو کاروبار دوست ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ڈیجیٹل معیشت کی جانب تیز پیش رفت کا حکم، تمام ریاستی ملکیتی اداروں کو ڈیجیٹل نظام کے دائرہ کار میں لایا جائے، راست کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں معیشت اور کاروباری ماہرین کو شامل کرنے کی ہدایت، ادائیگیوں کے طریقہ کار کی ڈیجیٹائزیشن سے شفافیت اور صارفین کے لیے آسانی ہوگی، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری افراد کے لیے کیش لیس اکانومی کے مراحل آسان بنانے کی ہدایت۔ ڈیجیٹل پیمنٹ ڈیوائسز پر درآمدگی ڈیوٹی ختم، ایک ماہ میں ڈیجیٹل پیمنٹس انڈیکس کا اجرا، ڈیجیٹل ادائیگیوں کے لیے چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر حکومت کے ساتھ اشتراک کیا جا رہا ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان ادائیگیوں کا تمام ڈیٹا مکمل، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، پینشن اور کانٹریکٹر سے خرید و فروخت کی ادائیگی مکمل طور پر ڈیجیٹل طریقے سے کی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو کیش لیس اور ڈیجیٹل معیشت کے حوالے سے پیش رفت پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کو ایف بی آر ڈیجیٹائزیشن، مصنوعی ذہانت پر مبنی نظام کے نفاذ اور اصلاحات پر بریفنگ، اردو میں آسان ٹیکس گوشوارہ خوشائن، گوشوارے بھرنے کے عمل میں مدد کے لیے ہیلپ لائن قائم کی جائے گی، ڈیجیٹل انوائسنگ کا بھی اردو میں اجرا کیا جائے، آسان ٹیکس گوشواروں سے تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ مستفید ہوگا، وزیر اعظم۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار ایس سی او وزراء خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کے لیے بیجنگ پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم کی مختلف ملکوں کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ پاکستان، ایران اور عراق کے وزراء داخلہ کی تہران میں کانفرنس، ایران اور عراق جانے والے زائرین کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات پر اتفاق، مشترکہ ورکنگ گروپ کی تشکیل کا فیصلہ، آئندہ برس سے پاکستانی زائرین انفرادی طور پر عراق نہیں جائیں گے، زائرین صرف گروپ آرگنائزرز کے تحت جا سکیں گے۔ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی حملے کی کھل کر مذمت کی، ایران کے حق کے دفاع کی مکمل حمایت کی، جنگ کے دوران پاکستانی عوام ایران کے ساتھ کھڑے رہے، وزیر داخلہ محسن نقوی۔ ایف بی آر کے اضافی اختیارات انکم ٹیکس نہیں، سیلز ٹیکس فراڈ سے متعلق ہیں۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ہر ممکن ریلیف دیا، ٹیکس گوشواروں کو آسان بنا دیا، حکومتی اخراجات کم کیے، بینک سرمایہ کاروں سے مل کر بیمار سرحدی یونٹس کو بحال کریں۔ معاشی استحکام میں اوورسیز پاکستانیوں کا کلیدی کردار ہے، تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے ہیں، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام، پیرا کے ذریعے قانون کے نفاذ سے پنجاب میں نیا دور شروع ہوگا۔ اتھارٹی ناجائز منافع خوری اور تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنائے گی، ذخیرہ اندوز نہیں بچ سکیں گے۔ تجاوزات کے خاتمے سے تاجر برادری کے کاروبار میں بہتری آئی ہے۔ سیاست کا محور صرف عوامی خدمت ہے، مختصر مدت میں عوام کا ہر خواب سچ کر دکھایا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں خطاب۔ مستحق سائلین کو قانونی نمائندگی مجسٹریٹ عدالتوں سے سپریم کورٹ تک میسر ہوگی۔ اقدام کا مقصد شہریوں کے لیے انصاف تک مساوی رسائی یقینی بنانا ہے۔ چاروں صوبوں میں لا اینڈ جسٹس کمیشن کے نمائندے تعینات کیے جائیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس شاہیہ آفریدی کا کوئٹہ میں خطاب۔
इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतालिक मुकदमे का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के वकला ने दलाइल दिए। पाकिस्तान की क्रिप्टो हिकमत अमली को आलमी मालियाती मंजरनामे में अहम मकाम हासिल। बाइनेंस के बानी का पाकिस्तान के साथ इश्तराक सिफारती और मुआशी कामयाबी साबित। मोदी की नाअहल इक्तिसादी पॉलिसीज न सिर्फ क्रिप्टो बल्कि दीगर उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में भी रुकावट बन चुकी हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से वाज़ेह कवानीन की कमी सरमायाकारों में गैर यकीनी का बायस। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जियों पर सख्त तशवीश का इजहार। बीजेपी की हठधर्मी जालिमाना पॉलिसियां खित्ते में अमन और तनाज़े कश्मीर के हल में बड़ी रुकावट। यौम शोहदाए कश्मीर पर रहनुमाओं की नजरबंदी, कर्फ्यू जैसी पाबंदियों और रास्तों की बंदिश से मोदी के दावे बेनकाब हो गए। हुर्रियत क़यादत। तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा की जानशीनी पर तनाज़ा। भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी में एक बार फिर शिद्दत। दलाई लामा का दोबारा जन्म और जानशीनी चीन का अंदरूनी मामला है। भारतीय मुदाखलत ताल्लुकात में मजीद बिगाड़ पैदा कर सकती है। बीजिंग का दिल्ली को सख्त इंतबाह। इंतहा पसंद मोदी का इक्तदार भारत के लिए फैशिज्म और आमरीयत की राह साबित। मोदी की पॉलिसीज ने भारत को फस्तायत की अलामत बना दिया। जजेस को रिटायरमेंट के बाद पुरकशिश ओहदे देकर मशरूत वफादारी खरीदी गई। मीडिया को इश्तिहारात की बंदिश और झूठे माली मुकदमात में जकड़ लिया। सहाफियों और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान आजादाना राबता खत्म करके सिर्फ सरकारी बयानिया नाफिज किया। भारतीय जरीदे दी वायर की रिपोर्ट। भारत का यात्रा की आड़ में फौजी तसल्लुत और पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बेनकाब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की हजीमत मिटाने के लिए एक बार फिर मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन शिवा का आगाज। मकबूजा वादी फौजी छावनी में तब्दील। भारत फर्जी खतरात घड़कर पाकिस्तान को बदनाम और मकामी कश्मीरी मज़ाहमत को दहशत गर्दी साबित करना चाहता है। कल से तेज हवाओं गरज चमक के साथ शदीद मॉनसून बारिशों की पेशगोई। हवा का कम दबाव भारत के शिमाल मगरिब में मौजूद। मॉनसून हवाएं शिद्दत से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बरसाती नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आने और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। शहरियों को मौसमी हालात से आगाही और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों ने जल थल एक कर दिया। हैदराबाद समेत सबसे ज्यादा 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं से कई दरख्त उखड़ गए। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। उमरकोट, मिट्टी, सांगड़, खैरपुर, पटईदन, सक्खर, लाड़काना, शिकारपुर और साहली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गाजा में सिहोनी फोर्सेस की दरिंदगी जारी। मजीद 100 फलस्तीनी शहीद, शोहदा में बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। फजाई हमलों में 2 सहाफी भी शहीद। अक्टूबर 2023 से जारी सिहोनी मजालिम में शोहदा की तादाद 58,000 से तजावुज कर गई। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। गाजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। दूसरी एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप। पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी। कौमी टीम की चाइनीज ताइपे को 3-0 से शिकस्त। पाकिस्तानी टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। आलमी नंबर 1 इटली के जानिक सिनर का चौथा ग्रैंड स्लैम टाइटल। विंबलडन ओपन टेनिस के चैंपियन बन गए। फाइनल में सिनर ने दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज को शिकस्त दी। जानिक सिनर का यह पहला विंबलडन ओपन एजाज है।
for Palmer. और अमेरिका में फीफा क्लब वर्ल्ड कप इंग्लिश क्लब चेल्सी ने टाइटल जीत लिया। फाइनल में फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन को 3-0 से शिकस्त दी। कोल पामर ने 2 गोल किए। João Pedro 3-0. Dreamland for Chelsea. और मुंतखब हुकूमत का आवाम को सेहत की सहूलत उनकी दहलीज तक पहुंचाने का मिशन। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा तकमील के आखिरी मराहिल में ओपीडी ने आजमाइशी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया। 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद तिब्बी सहूलतों से मुज़य्यन हस्पताल की तफसीली रिपोर्ट खबरनामे में शामिल है। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील भी शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। इज्जत और एहतराम और वक़ार का हर सिलसिला है ख़वातीन से। वतन की बेटियां आगे बढ़ रही हैं मुकम्मल यकीन से। आपकी हिफाजत, आपका तहफ़्फ़ुज़, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हैं हर कदम पुरअज़्म। मुक़द्दस आंचल का तहफ़्फ़ुज़ और शान बढ़ा रहे हैं हम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के महफूज और मजबूत दुख्तरान पंजाब विजन के तहत पंजाब की मेहनती पुरएतमाद और बाइख्तियार ख़वातीन लाज़वाल जज्बों से तामीर पाकिस्तान के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा कर रही हैं। ख़वातीन की समाजी और मुआशी और सिनफी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए तारीख साज़ इक़दाम। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम, वुमेन सेफ्टी ऐप और पुलिस प्रोटेक्शन ऐप का इजरा, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्पलाइन का हुसूल, जेंडर बेस्ड वायलेंस के खात्मे के लिए ट्रैकिंग सिस्टम का आगाज, जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़, डोमेस्टिक वायलेंस से मुतासरा ख़वातीन के लिए वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स का क़याम। तारीख में पहली बार चीफ मिनिस्टर पिंक गेम्स का इनक़ाद। पंजाब की रानी प्रोग्राम के तहत हजारों मुस्तहिक बेटियों की शादियाँ। अब नहीं है कोई मुश्किल, खौफ से हो तुम आजाद। हुकूक़ निस्मा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हैं पुरएतमाद। हुकूमत पंजाब। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, जहां पर नई तारीख रकम हुई है और 100 इंडेक्स 2202 पॉइंट्स के इजाफे के बाद बुलंद तरीन सतह 1,36,502 पर बंद हुआ। रिपोर्ट करेंगे जमीर अब्बास। हुकूमत की मुआशी और इक़्तिसादी पॉलिसियों को न सिर्फ मकामी सतह पर सराहा जा रहा है बल्कि आलमी सतह पर भी इसकी पजीराई हो रही है। आज भी पाकिस्तान के लिए IMF के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव माहिर बिनिकी ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत ने गैर मामूली तरक्की की है। अगर इन पॉलिसियों का सिलसिला जारी रहा तो गुज़िश्ता माली साल की तरह रवां माली साल भी पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरीन साबित होगा। इसके अलावा आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारत और ताल्लुकात के फरोग के लिए किए गए हुकूमती इक़दाम भी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा कर रहे हैं। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद मार्केट ने पहले 1,35,000 और बाद में 1,36,000 की हद अबूर करते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,36,841 पर पहुंची। कारोबार का आगाज इंतहाई मुस्बत अंदाज में होता है। पिछले 3 हफ्तों से देख रहे थे कि 13,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ऑलरेडी कर चुकी है। कंटिन्यू पॉजिटिव मार्केट इस वक्त दिखा रही है, जिसके मेन ट्रिगर्स आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं जो डे बाय डे इंप्रूव हो रहे हैं। हमारे रिजर्व $20 अरब से ज्यादा हो चुके हैं। IMF की कंडीशन को भी हमने मीट कर लिया। फिर साथ साथ जो रेमिटेंसेज हैं वो रिकॉर्ड तादाद में बाहर से आए हैं। जिस तरह ऑटो की सेल्स बढ़ी है और काफ़ी अर्से बाद हम देख रहे हैं कि ट्रक्स की और ट्रैक्टर की सेल्स भी इंक्रीज हो रही हैं, विच इज शोज के इकोनॉमी में कुछ रिवाइवल हो रहा है और हमारी इकोनॉमी दोबारा से बूस्ट करने जा रही है। आने वाले दिनों में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर्स की कि इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम होगा, जिससे इकोनॉमी और बूस्ट करेगी, ग्रो करेगी। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट का सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। निजी बैंकों की तरफ से नताइज का ऐलान किया जा चुका है जो कि बहुत ही शानदार आ रहे हैं। मार्केट में आज मजमूई तौर पर 474 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 264 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 194 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि
16 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज बाजार हिस्सेस में 37 अरब 5 करोड़ रुपए की लागत के 3,97,000 सौदे हुए, जिसमें 84 करोड़ से जायद के शेयर्स का कारोबार हुआ। आज बाजार में कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट और पावर जनरेशन की कंपनियों के शेयर्स में तेजी रही। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बुलंद तरीन सतह अबूर करना कारोबारी बिरादरी के मुल्की मईशत पर एतमाद का मजहर है। उन्होंने कहा कि कारोबारी बिरादरी को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अहम तरजीह है। मुस्बत मौशी अशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ की दुरुस्त होने की अक्कास हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद इक्तसादी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डिजिटल मईशत के लिए इक़दामात मज़ीद तेज़ करने की हिदायत करते हुए कहा है कि तमाम रियासती मलकियती इदारों को भी डिजिटल आदायगियों के निज़ाम में लाया जाए। तफसील बताएंगे उमर फारूक। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में कैशलेस और डिजिटल मईशत राइज करने से मुताल्लिक इक़दामात पर पेश रफ्त का जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि रास्त और डिजिटल अदायगियों के लिए आगाही मुहिम आइंदा माह शुरू की जाएगी। मुल्क में मोबाइल फोन एप्लीकेशंस और डिजिटल बैंकिंग इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 9.5 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ हो जाएगी, जबकि डिजिटल अदायगियाँ 7.5 अरब से 15 अरब रुपए तक पहुँच जाएंगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि डिजिटल पेमेंट्स डिवाइसेस पर दरामदी ड्यूटी खत्म कर दी गई है। इसके साथ तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह एक माह में डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स का भी इजरा किया जा रहा है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि निज़ाम में शफाफियत के लिए मईशत की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम तरजीह है। अदायगियों का अमल डिजिटल होने से सार्फिन के लिए आसानी पैदा होगी। उन्होंने कहा कि छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकोनॉमी के मराहिल आसान बनाए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और चेयरमैन की तकर्री का अमल सितंबर तक मुकम्मल किया जाए और उसमें माहिरीन को शामिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले मरले में वफाक से सूबाई हुकूमत की अदायगियों का तमाम डाटा मुकम्मल कर लिया गया है। कैशलेस इकोनॉमी राइज करने के लिए पहले मरले में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और कॉन्ट्रैक्टर से खरीदो फरोख्त की अदायगी मुकम्मल तौर पर डिजिटल तरीके से की जाएगी। हुक्काम ने बताया कि तरसीलात ज़र के निज़ाम को भी डिजिटाइज किया जा रहा है। बैरून मुल्क से आने वाली तमाम रकूम बैंकों के जरिए मौसूल होंगी। इजलास को बताया गया कि इस्लामाबाद सिटी मोबाइल फोन एप्लीकेशन को रास से मुंसलिक कर दिया गया है। QR कोड और डिजिटल अदायगियों के लिए कमर्शियल पॉइंट्स की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की जा रही है। ब्रीफिंग में बताया गया कि वफाकी दारुल हुकूमत में पब्लिक वाईफाई और मखसूस जगहों पर लाइब्रेरीज का क़याम दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी करवाई जाएगी। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि टैक्स के दायरे में वुसअत और गरीब आदमी पर टैक्स के बोझ में मजीद कमी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने गोशवारे भरने के लिए हेल्पलाइन के साथ डिजिटल इनवॉइसिंग का उर्दू में इजरा करने की हिदायत की है। तफसील शेयर कर रहे हैं शाहरुख शफी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और टैक्स निज़ाम में शफाफियत हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ FBR में इस्लाहात और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोएकार लाने के अमल में पेशरफ्त से मुतल्लिक हफ्तावार इजलास की खुद सदारत करते हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होने वाले इजलास में FBR की डिजिटाइजेशन, मसनूई ज़हानत पर मबनी निज़ाम के नफाज और दीगर इस्लाहात से मुतल्लिक इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। शुरका को डिजिटल इनवाइसिंग, टैक्स गोशवारे आसान बनाने, मसनूई ज़हानत पर मबनी असेसमेंट सिस्टम, सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कयाम और कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम पर पेशरफ्त से मुतालिक आगाह किया गया। इजलास को नए और आसान टैक्स गोशवारे के बारे में ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि तनख्वाहदार तबके के लिए डिजिटल और आसान टैक्स गोशवारे का इजरा किया जा रहा है, जबकि 30 जुलाई से बाकी शोबों के लिए सहूलत मुयस्सर होगी। तनख्वाहदार तबके के लिए उर्दू में टैक्स गोशवारे 30 जुलाई से मुयस्सर होंगे। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की कि टैक्स रिटर्न्स की आसानी के हवाले से अवामी आगाही मुहिम चलाई जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR में तमाम इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मसनूई ज़हानत के जरिए टैक्स असेसमेंट के निज़ाम का इतलाक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इनवाइसिंग के निज़ाम में शमूलियत के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को खुसूसी सहूलत फराहम की जाए। इजलास को बताया गया कि FBR के कमांड एंड कंट्रोल यूनिट के कयाम के लिए बिडिंग जल्द मुकम्मल करके सितंबर तक इसे मुकम्मल फ़ाल कर दिया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि बहरी जहाज़ों की आमद से पहले ताजरों को पेशगी
गुड्स डिक्लेरेशन भरने की सहूलत फराहम की गई है, जिसके तहत अपफ्रंट ड्यूटीज और टैक्स पर मुकम्मल छूट दी जाएगी। इस निजाम के इतलाक से पेशगी गुड डिक्लेरेशन 3% से बढ़कर 95% से ज्यादा होने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि डिजिटल इनवाइसिंग के जरिए तमाम छोटे और बड़े कारोबार खरीदो फरोख्त के वक्त FBR के ऑनलाइन निजाम के जरिए रसीद का इजरा यकीनी बनाएंगे। इस निजाम के तहत आइंदा चंद माह में 20,000 के करीब कारोबार निजाम के साथ मुंसलिक हो जाएंगे। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ नाज़रीन, नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं। चीनी वजारत खारजा के जनूबी एशिया उमूर के सफ़ीर यो होंग और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी और दीगर आला हुक्काम ने नायब वज़ीर-ए-आज़म का हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म तियानजिन में कल SCO वज़ीर खारजा कौंसिल इजलास में पाकिस्तान के वफ़द की क़यादत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म चीन के सदर शी जिनपिंग और इजलास में शरीक होने वाले मुख्तलिफ वज़ीर खारजा से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर खारजा कौंसिल SCO का तीसरा आला तरीन फोरम है। इस फोरम में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, खारजा पॉलिसी और सलामती से मुतल्लिक़ उमूर पर गौर किया जाता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार की सदारत में दोस्त मुल्कों से अहम शोबों में होने वाली सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायजा इजलास हुआ। इजलास में तवानाई, पेट्रोलियम, बुनियादी ढांचा और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में बैरून ममालिक से सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इक़दामात पर अमल दरामद के लिए इदारा जाती ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने दोस्त ममालिक से सरमायाकारी को मौशी कामयाबियों और खुशहाली में तब्दील करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी करके मईशत को इस्तेहकाम की राह पर गामज़न किया है। रिपोर्ट करेंगे सैयद जहांगीर अली। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कराची में ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कारोबारी बरादरी से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों के मसाइल हल कर रहे हैं, जबकि FBR में सेल्स टैक्स रिकवरी के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सेल्स टैक्स में फ्रॉड को रोकने के लिए जदीद इक़दामात भी किए गए हैं। ये सेल्स टैक्स का फ्रॉड जो है वो अगर सेक्शन पढ़े तो उसमें 10 या 12 सेक्शंस हैं, उसमें से 6 का इस पे इतलाक होगा। दूसरा ये कहा गया अगर इसकी टैक्स फ्रॉड की मालियत 5 करोड़ से ऊपर हो तो फिर ये पावर एक्सरसाइज हो सकेगी। तीसरी चीज़ ये कही गई कि ये सिर्फ अब हम किसी ऑफिसर पे नहीं छोड़ेंगे, ये अगर कोई इशू कर सकेगा तो ये कमिश्नर लेवल पे होगा, और सिर्फ कमिश्नर लेवल पे नहीं होगा, इसकी जो इजाज़त मिलेगी वो मिलेगी फ्रॉम ए 3 मेंबर FBR बोर्ड
वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि टैक्स रिटर्न फॉर्म को सादा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम बैंकों के सदूर से मुलाकात की है और अब कमजोर इदारों को मुआशी तौर पर मजबूत करने में बैंकिंग सेक्टर को अपना बेहतर किरदार अदा करना होगा। इससे पहले वफाकी वजीर खजाना ने ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मल्टीनेशनल कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात की और उनको दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि उनकी सियासत का महवर अवामी खिदमत है। मुख्तसर मुद्दत में अवाम का हर ख्वाब सच कर दिखाया है। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। लाहौर में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की तकरीब से खिताब करते हुए पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि सूबे में मसनूई महंगाई कंट्रोल करने और तजाविजात के खात्मे के लिए कोई फोर्स नहीं थी। ये नई अथॉरिटी नाजायज मुनाफाखोरी और तजाविजात के खात्मे को यकीनी बनाएगी। आर्टिफिशियल जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जब मैंने देखा तो कोई डेडिकेटेड फोर्स नहीं थी। हमने जो नाजायज़ तजावज़ात हैं उसको हटाने के लिए पूरे पंजाब में बिला तफरीक इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन किया है। तो अब बाज़ार खुले होने की वजह से न सिर्फ ये कि ख़वातीन के लिए वो सेफ़ हो गए हैं, बल्कि मुझे जो वहाँ पर ट्रेडर्स हैं, जो वहाँ पे दुकानदार हैं, जो वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी, उसकी तरफ से भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और वो ये कि हमारी जो सेल्स हैं वो बढ़ गई हैं क्योंकि बाज़ार साफ़ हो गए हैं, दुकानों की एक्सेस ठीक हो गई है, ट्रैफिक में बेहतरी आई है क्योंकि तजावज़ात हटा दी गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पैरा फोर्स में पूरे सूबे से ईमानदार अफसरान तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फोर्स को जदीद तरबियत और टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया गया है। रियासत मैं भी हूँ, रियासत आप भी हैं, हम में से हर फर्द रियासत है और आपका जो काम है पैरा का, वो आपका टॉप ऑफिसर हो या नीचे तक आपका जो सिपाही है, उसका काम ये है कि जालिम के सामने आहनी दीवार बनना, जालिम के लिए दहशत की अलामत बनना और मजलूम का सहारा बनना, मजलूम की उम्मीद बनना, मजलूम की मदद के लिए पहुंचना। जिसने जुनेद का चालान किया था तो मैंने उसको कहा कि बेटा आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर का बेटा हो या कोई भी हो, कोई वजीर हो, कोई मशीर हो, कानून से कोई बालातर नहीं। वज़ीर आला ने कहा कि अवामी खिदमत का सफर जारी है और अवाम से किया गया एक एक वादा पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान हमारा फख्र हैं, जिनको देखकर यकीन होता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। इस मौके पर वज़ीर आला ने पैरा फोर्स के अरकान से मुलाकात की और उनकी गाड़ियों, मोटर बाइक्स और साजो सामान का मुआयना किया। पैरा फोर्स के दस्ते ने मार्शल आर्ट और मुजाहिरीन को रोकने के लिए ऑपरेशन अमूर का मुजाहरा किया। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि रिवायती सियासत का दरवाज़ा बन करके खिदमत का सियासत का दर खोल दिया है। लाहौर में अपनी छत अपना घर मंसूबे के बारे में इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि 51,000 से ज़्यादा खानदानों के अपने घर का ख्वाब हकीकत बन गया। कोशिश है पंजाब का कोई शहरी बगैर छत के न रहे। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत के हर इकदाम का मकसद अवाम की तरक्की, तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत है। यही कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है और मेरा अहद है। वज़ीर आला को बताया गया कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत अब तक 60 अरब 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम तकसीम की जा चुकी है। मंसूबे के तहत 45,178 घर ज़ेर तामीर हैं, जबकि 6,160 घर मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर आला ने मंसूबे की रफ्तार मजीद तेज करने का हुक्म दिया। सरगोदा में 19 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाले अस्पताल नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की OPD ने काम शुरू कर दिया है। तफसील बता रहे हैं शेख अहसन नवीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर जदीद सहूलतों से आरास्ता सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी तकमील के आखिरी मराहिल में है, जहाँ बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक इलाज और मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सरगोदा शहर के वस्त में 85 किनार रकबे पर फैले 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस अस्पताल में एमरजेंसी, रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर, ICU, CCU, जनरल वार्ड्स और दूसरे शोबे कायम किए गए हैं। मरीजों के साथ आने वाले अफराद को सहूलत फराहम करने के लिए हस्पताल में कैफेटेरिया और सराय की तमीर भी जारी है। हस्पताल की तमीर से सरगोदा डिवीजन के चारों अजला सरगोदा, खुशाब, मियांवाली, बखर के साथ झंग, मंडी बहाउद्दीन,
जेलम, पिंदादर खान और दूसरे इलाकों के मरीज़ भी दिल के अमराज में इलाज मुआवजे की मियारी सहूलतों से मुस्तफ़ीद होंगे। हस्पताल में जदीद मशीनों के ज़रिए मरीज़ों की इकोग्राफी, कार्डियोग्राफी, ECG और दूसरे टेस्ट किए जा रहे हैं। 11 महीने गुजरने के बाद हम इसको कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहे हैं। OPD एज पर हमारा एक्चुअल टारगेट, उसकी इनॉग्रेशन हमने पहले करवानी थी। पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्हें देखा जाता है, जो उनके टेस्ट हैं सारे टेस्ट की सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं। पहले लोग कार्डियोलॉजी के लिए कोई दिल का मसला बनता था तो आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता था, दूर दराज इलाकों में जाना पड़ते थे। और लोग बहुत खुश हैं कि पहले हम इस्लामाबाद जाते थे, लाहौर जाते थे, वही इलाज हमें यहाँ पर मिल रहा है, जिससे हमारा टाइम भी बच रहा है। मरीजों की बड़ी तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर चेकअप के लिए हस्पताल का रुख कर रही है। इब्तदाई मरहले में मरीजों का मुफ्त चेकअप किया जा रहा है। सरगोदा रीजन के 1 करोड़ से ज़ायद लोग इस हस्पताल से मुस्तफ़ीद होंगे। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी दिल के मर्ज में मुब्तला लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जहां बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक सहूलतें फराहम की जा रही हैं। शेख हसन नवीद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सरगोदा। तेहरान में पाकिस्तान, ईरान और इराक के वज़ीर दाखिला की कॉन्फ्रेंस, ज़ायरीन और सरहदी मामलात के हल के लिए मरबूत इक़दामात पर गौर हुआ और ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसील बताएंगे फ़ाहद जावेद। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पाकिस्तान, ईरान और इराक के वज़ीर दाखिला की सरफरीकी कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस में ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन की सहूलियात का तफसील से जायजा लिया गया। ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक हुआ। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इसराइल ईरान जंग में शानदार फतह हासिल करने पर ईरानी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। The Pakistani people were standing right next to the people of Iran. Pakistani Prime Minister and other officials were active and they tried their level best, whatever they could do. And your ambassador Amiri is sitting here. He is witness to all that what we were doing in Pakistan and how we were coordinating with other countries. कॉन्फ्रेंस के बाद तीनों वज़ीर दाखिला ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़ायरीन के मसाइल को हल करने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। That we will be having a joint working group between the three countries so that we can have a better coordination. But the most important thing is, which we all should acknowledge, that this is one of the biggest gathering. There are several million people who comes to go to Iraq. कॉन्फ्रेंस से पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ारत दाखिला आमिद के मौके पर ईरानी हम मनसब ने उनका इस्तकबाल किया। फ़ाहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर अरकान की बहाली के मामले की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के वकला ने दलाइल दिए। फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने केस का फैसला महफूज कर लिया। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक वफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती को सरकारी खजाने से 36 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द के मामले पर तहकीकात के लिए 17 जुलाई को तलब कर लिया है। नैब ने MPA डॉक्टर अमजद अली के खिलाफ भी ज़राए आमदन से ज़्यादा असासे जमा करने के सिलसिले में इंक्वायरी शुरू कर दी है। नैब ने उन्हें असासाजात और इनकम टैक्स रिटर्न्स की तफसीलात 17 जुलाई तक नैब दफ्तर हयाताबाद में जमा कराने की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा में आवाम हुकूमती कारकर्दगी से शदीद नाला नजर आ रहे हैं। गैलिब पाकिस्तान की फरवरी मार्च 2025 सर्वे के मुताबिक सूबे में बुनियादी सहूलियात, मईशत, इंसाफ, सिक्योरिटी और क़यादत के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। अदनान शाह की रिपोर्ट देखिए। गैलिब सर्वे के मुताबिक 66% आवाम को गैस की सहूलत दस्तयाब नहीं, जबकि 49% आबादी को बिजली कम या बिल्कुल नहीं मिलती। सिर्फ 63% लोगों को सेहत की सहूलियात मुयसर है, जबकि देही और जनूबी इलाकों में यह तनासब और भी कम है। सर्वे के मुताबिक 77% इलाकों में पार्क्स नहीं, 81% इलाकों में लाइब्रेरी नहीं
और 70% इलाकों में कम्युनिटी सेंटर्स तक मौजूद नहीं। गैलप सर्वे के मुताबिक साल 2024 की बाद तरक्की की रफ्तार नुमाया तौर पर सुस्त पड़ गई है। सिर्फ 43% लोगों ने नई सड़कों की तामीर देखी, जबकि 49% PTI वोटर्स ने भी तरक्याती मंसूबों की अदम मौजूदगी पर शिकवा किया। PTI की गवर्नमेंट ने पिछले 12 साल से जितने भी दावे तो किए हैं मगर उसका एक भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। सर्वे के मुताबिक 52% अवाम ने तरक्याती फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। इसके अलावा 71% ने पुराने मंसूबों की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। इसमें PTI के हामी भी शामिल हैं। 48% के मुताबिक करप्शन में इजाफा हुआ है। 59% अवाम की राय है कि बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। 67% के मुताबिक हुकूमत रोजगार या कारोबारी मौके फराहम करने में नाकाम रही है। तशवीशनाक बात यह है कि 73% का मानना है कि सरकारी नौकरियां मेरिट पर नहीं बल्कि सिफारिश पर दी जाती है। इस वक्त हमारा सूबा तकरीबन, मैं तो ये कहूँगा कि 70 नहीं 90% लॉसेस पे जा रहे, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, या और जो मतलब जितने भी वो है इदारे, सारे लॉसेस में जा रहे। सर्वे के मुताबिक 57% शहरी दहशतगर्दी से खौफजदा हैं। खुसूसन जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में यह शरह 72% तक है। 60% के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने एहतजाज में कीमती वक्त ज़ाया किया और अवामी खिदमत को तरजीह नहीं दी। 85% अवाम वफाक से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, जो कि मौजूदा हुकूमत के रवैये के बरअक्स है। ये हमारी बदकिस्मती है। पंजाब में आप जाकर देख ले कि मरियम नवाज़ जिस तरह वहाँ पर डेवलपमेंट कर रही है, हर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, फाइनेंस में, एजुकेशन में पॉलिसीज़ जिस तरह आ रही है, तो इंटरनेशनली उनको एक रिकग्निशन मिल रही है। और खैबर पुख्तूनख्वा को गंडापुर ने यहाँ पर मुकम्मल तौर पर डिफ़ॉल्ट कर दिया है। अवाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अब सिर्फ दावे नहीं बल्कि अमली इक़दामात, शफाफियत और हकीकी तरक्याती कामों की तवक्को रखते हैं। गैलप सर्वे इस बात का सबूत है कि अवामी एतमाद बहाल करना हुकूमत के लिए अब भी मुमकिन है, मगर सिर्फ इस्लाहात, एहतिसाब और अवामी शमूलियत के जरिए। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी होगी। दाखिला के वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा है कि अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए FC को जदीद खतूत पर उस्तवार करना जरूरी है। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील बताएंगे हाफिज मोहम्मद अली आबिद। FC के कमांडेंट रियाज नजीर गाड़ा के हमरा फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उमूर दाखिला के वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने FC की तश्कील नौ का फैसला किया है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी होगी और FC दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरह काम करेगी। उन्होंने कहा कि क़याम अमन के लिए FC का खसूसी किरदार होगा। तलाल चौधरी ने कहा कि फेडरल कांस्टेबलरी का तमाम बजट वफाकी हुकूमत देगी और ये आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करेगी। ये जो FC थी, हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब ये फेडरल कांस्टेबली होगी और फेडरल कांस्टेबली विल बी फेडरल कांस्टेबली। कोई कंफ्यूज ना करे कि ये फेडरल पुलिस है। बहुत सारे क्योंकि ऑर्डिनेंस हुआ है तो बहुत सारे लोग ऑर्डिनेंस पढ़े बगैर, उसकी डिटेल्स में जाए बगैर इसको फेडरल पुलिस से तशबीह दे रहे हैं। तो एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें, जिसके लिए आज खुसूसन आपसे ये नशिस्त रखी गई है कि फेडरल कांस्टेबली विल रिमेन फेडरल कांस्टेबली। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि FC की तरबियत के हवाले से इक़दामात कर रहे हैं और इसमें असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक नए विंग्स बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि FC की दाखिली खिदमात सबके सामने नुमाया हैं। इसमें नई एडिशन, नए विंग्स जो कि असर हाजिर की जरूरत के लिए हैं, वो इसमें बनाए जाएंगे। FC के कमांडेंट रियाज नजीर गाड़ा ने कहा फेडरल कांस्टेबलरी के 41 विंग्स होंगे और इसे 6 डिवीजन्स में तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फेडरल कांस्टेबलरी की ऑपरेशनल जरूरियात को वफाक पूरी करेगा। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। पाकिस्तान के क्रिप्टो हिकमत अमली को मुख्तसर अरसे में आलमी मालियाती मंजरनामे में अहम मकाम हासिल हो गया है। मुजीबुल हक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल असासों के शोबे में तेज़ रफ्तार और फ़ाल पॉलिसी इक़दाम से आलमी मालियाती मंजरनामे में अपनी अलग पहचान बना ली है। 9 जुलाई को सदर पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए पाकिस्तान वर्चुअल असासा रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का ऐलान किया।
जो क्रिप्टो से जुड़े तमाम मामलात की निगरानी करेगी। मारूफ क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के बानी चैंगपेंग ने पाकिस्तान के साथ शराकत दारी को न सिर्फ सफारती बल्कि माशी कामयाबी करार दिया। पाकिस्तान ने क्रिप्टो को सिर्फ एक डिजिटल करेंसी के बजाय स्ट्रेटजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में अमेरिका समेत कई आलमी ताकतों के साथ माशी ताल्लुकात में बेहतरी देखी गई है। पाकिस्तान मुस्तकबिल में बिटकॉइन माइनिंग और क्रिप्टो रिजर्व जैसे मनसूबों पर भी काम कर रहा है ताकि आलमी मईशत में मुस्तहकम किरदार अदा किया जा सके, जबकि इसके बरक्स भारत में क्रिप्टो के हवाले से सूरत हाल गैर वाज़ह है। सैकड़ों स्टार्टअप्स दबाव का शिकार हो चुके हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट कई बार हुकूमत से क्रिप्टो पर वाज़ह हिकमत अमली का मुतालबा कर चुकी है। मोदी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों और गैर मौजूदा कानून साजी के बायस वहाँ सरमायाकार गैर यकीनी का शिकार है, जबकि पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली के तहत क्रिप्टो को न सिर्फ माशी तरक्की बल्कि सफारती और तवानाई के शोबे में भी मौसर तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। ज़राअत के शोबे का पाकिस्तान की मईशत में कलीदी किरदार है। इस शोबे की तरक्की के लिए कई अहम इकदाम किए गए हैं। तफसील बताएंगे ज़बीर अब्बास। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल एक अहम कौमी प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के अमल को तेज, आसान और शफाफ बनाना है। SIFC के एजेंडे में ज़राअत को मरकजी हैसियत हासिल है क्योंकि ज़राअत का शोबा न सिर्फ मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है बल्कि रोजगार, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और बरामदात के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा करता है। SIFC के तहत नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी का क़याम ज़राई तरक्की की जानिब अहम संगे मील है। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन और एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट को जम करके नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी के नाम से नया इदारा कायम किया गया है। इस इदारे के क़याम का मकसद मुल्क के ज़राई निज़ाम को जदीद आलमी मेयार के मुताबिक ढालना है। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन की लेबॉर्ट्रीज की अपग्रेडेशन और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पर काम शुरू कर दिया गया है। SIFC की मामलत से ज़राई शोबे में जदीदियत और शफाफियत को फरोग दिया जा रहा है। नाफसा के तहत मिथाइल ब्रोमाइड का गैर ज़रूरी इस्तेमाल कम करके फी कंटेनर 40,000 रुपए तक की बचत मुमकिन हो सकेगी। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दलाई लामा की जानशीनी के मामले पर चीन की भारत को सख्त तनबीह। चीन का मजबूत मौक़िफ़ है कि दलाई लामा का दोबारा जन्म और जानशीनी का मामला चीन का अंदरूनी मामला है। भारत की मुदाखलत से ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जाद। भारत और चीन के दरमियान पहले से मौजूद सरहदी कशीदगी में एक बार फिर से शिद्दत आ गई है। तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा की जानशीनी से मुतल्लिक बयानात पर बीजिंग ने नई दिल्ली को सख्त खबरदार किया है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक चीनी सफारत खाने ने वाज़े किया है कि दलाई लामा का मामला मुकम्मल तौर पर चीन का अंदरूनी मामला है। इस पर भारत का कोई भी मौक़िफ़ या मुदाखलत ताल्लुकात में मजीद बिगाड़ पैदा कर सकते हैं। चीन का यह बयान भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दौरे चीन से कबल सामने आया है, जहाँ वो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। ये दौरा 2020 की मुहलिक सरहदी झड़पों के बाद भारत और चीन के दरमियान पहला आला सतही राब्ता होगा। इन झड़पों में कम अज कम 20 भारतीय और 4 चीनी फौजी हलाक हुए थे। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हाल ही में दलाई लामा की 9वीं सालगिरह की तकरीबात भारत में मुनक्किद हुई। इन तकरीबात में भारतीय वुज़रा और हुकाम की शिरकत ने चीन को शदीद नाराज किया। दलाई लामा ने एक बार फिर खुलकर कहा है कि उनकी जानशीनी में चीन का कोई किरदार नहीं होगा। बीजिंग ने इन बयानात को अपनी रियासती खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दिया है। नई दिल्ली में चीनी सफारत खाने के तर्जुमान के मुताबिक तिब्बत से मुतल्लिक मसाइल इंतहाई हसास हैं। दलाई लामा कार्ड खेलना भारत के लिए बोझ बन सकता है और ऐसा करना भारत के लिए अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा। दलाई लामा 1959 में चीन के खिलाफ बगावत के बाद से भारत में जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। चीन हमेशा से दलाई लामा को एक हसास सफारती मसला तस्वुर करता है। ये मामला खित्ते की सियासी सूरत हाल को मजीद हसास और गैर यकीनी बना रहा है। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अब तो भारतीय सहाफ़ी भी मान गए कि मोदी का इक़्तिदार भारत के लिए जमहूरियत नहीं बल्कि फैशिज्म और आमरीत का रास्ता है। सीनियर सहाफ़ी प्रेम शंकर झा की मोदी सरकार पर किताब का अहवाल आसिम नज़ीर भट्टी की ज़बानी। मोदी सरकार ने भारत में जमहूरियत के नाम पर एक ऐसा निजाम कायम किया जहां सिर्फ हुक्मरान की जुबान बोली जाती है। अदलिया, मीडिया और रियासती इदारों पर मोदी सरकार का शिकंजा भारत को एक खालिस आमराना रियासत में तब्दील कर रहा है। हाल ही में सीनियर सहाफ़ी प्रेम शंकर झा ने मोदी सरकार पर एक मुफस्सिल किताब लिखी जिसमें भारत की जमहूरियत के ज़वाल को बयान किया गया। किताब में बताया गया कि मोदी ने बतौर वज़ीर आज़म भारत को फाशिस्ट रियासत में तब्दील किया। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक प्रेम शंकर झा ने अदलिया, मीडिया और वफाकी ढांचे पर मोदी के मुनज़्ज़म हमलों को बेनकाब किया।
दी वायर के मुताबिक मोदी ने हुकूमत संभालते ही वजारतों में कैमरे लगवाकर सहाफियों के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कार्ड्स मनसूख कर दिए हैं, जबकि सहाफियों और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान आजादाना राब्ते खत्म करके सिर्फ सरकारी बयानियां नाफिज किया गया है। दुनिया भर की बातें हो रही हैं, पर सवाल एक ही है। 11 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी जी का, और 11 साल में एक बार उन्होंने निडर होकर फ्री व्हीलिंग वार्ता नहीं की है मीडिया से। दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है जिसमें मीडिया से वो उसकी बातचीत नहीं हो। वजारतों के फैसले सरकारी वज़रा की जगह बीजेपी के नामजद अफराद के मशवरे से होने लगे। दी वायर ने मजीद कहा कि आजादी सहाफत पर हमले के तहत मोदी ने मीडिया को इश्तेहारात की बंदिश और झूठे माली मुकदमात में जकड़ लिया। NDTV के बानियों पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाकर चैनल को मफलूज किया गया। बिलाखिर NDTV को अडानी ग्रुप के हाथों फरोख्त करवाकर सरकारी तर्जुमान बना दिया गया। दी वायर के मुताबिक जजों को रिटायरमेंट के बाद पुरकशिश ओहदे देकर मशरूत वफादारी खरीदी गई। साबिक चीफ जस्टिस पी सतिया शोम को गवर्नर और AM खानोलकर को लोकपाल बनाया गया। मनसूबाबंदी कमीशन की जगह नीति आयोग कायम किया और तरक्याती फंड्स को जाती व जमाती मुफाद के मुताबिक बांटा गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है। चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि योजना आयोग को खत्म करने जैसे हाल के फैसले देश को महंगे पड़ेंगे। मोदी सरकार ने भारत में आइन, कानून, सहाफत और शफाफियत को अपनी मर्जी के ताबे कर दिया है और इदारों को नौकरशाही में तब्दील करके भारत को शख्सी हुक्मरानी की तजुर्बागाह बना दिया। मोदी के भारत में इंसाफ, आजादी और सच का कत्ल, जबकि इख्तलाफे राय गद्दारी और सच बोलना जुर्म बन चुका है। आसिम नजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि बीजेपी हुकूमत की हठधर्मी पर मबनी जालिमाना पॉलिसीज खित्ते में अमन और तनाज़े कश्मीर के हल में सबसे बड़ी रुकावट है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में मोदी हुकूमत की जानिब से 13 जुलाई 1931 के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए वज़ार शोहदा नक्शबंद साहिब की तरफ मार्च पर पाबंदी समेत इंसानी हकूक की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों पर सख्त तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू जैसी पाबंदियों, मज़ार शोहदा नक्शबंद साहिब श्रीनगर की तरफ जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी और सियासी रहनुमाओं की नज़रबंदी से मकबूजा इलाके की सूरत हाल में बेहतरी के मोदी हुकूमत के दावे बुरी तरह बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ताकत के वहशियाना इस्तेमाल के जरिए कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जायज़ जद्दोजहद को दबा नहीं सकता। KMS की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारत अमरनाथ यात्रा को मकबूजा कश्मीर पर अपने फौजी तसल्लुत को तूल देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हिंदू यात्रियों के तहफ़्फ़ुज़ की आड़ में भारत ने हज़ारों इजाफी फौजी एहलकारों को मकबूजा इलाके में तैनात कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दरहकीकत मोदी हुकूमत अमरनाथ यात्रा को अपने नौआबादियाती एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है ताकि मकबूजा इलाके की मुस्लिम अक्सरियती शनाख्त को तब्दील और कश्मीरियों की मुनसिफाना जदोजहद आज़ादी को दबाया जा सके। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म के मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत हो गए। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और बरतानवी वज़ीर डगलस अलेक्जेंडर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन को इदारा जाती बुनियादों पर इस्तवार करने की जानिब बड़ा कदम है। दोनों मालिक ने तिजारती मौक़े तलाश करने, रुकावटें दूर करने और बाहमी सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। मुआहदे के तहत मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। दोनों मालिक ने डिजिटल तिजारत, काबिल तजदीद तवानाई, ज़राअत और दवा साजी जैसे शोबों में ताउन पर जोर दिया। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये स्पेल 17 जुलाई तक जारी रहेगा। तफसील से आगाह कर रही हैं अज़का मकसूद। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मानसून बारिशों के तीसरे स्पेल का आगाज हो चुका है। शहर दिन भर सुरमई बादलों की लपेट में रहा। कहीं तो बादल खुलकर बरसे और कहीं बिन बरसे ही चले गए। लाहौर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31, कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब 83% रहा। PDMA के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में लाहौर और पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए
शहर का हंगामी दौरा किया। उन्होंने मिस्ट्री शाह, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों का दौरा किया और नकासी आब की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सड़कों और इतराफ में नकासी आब और सफाई के लिए इंतजामात का जायजा लिया और ट्रैफिक की सूरत हाल का भी मुशाहिदा किया। उन्होंने नकासी आब की सूरत हाल को मजीद बेहतर और तेज तर बनाने की हिदायत की। महकमा मौसमियात ने बारिशों का ये सिलसिला 3 से 4 रोज तक जारी रहने की पेशगोई की है। अगले 24 से 48 घंटों में जो पूरा पंजाब है, नॉर्थ ईस्ट पंजाब और पर्टिकुलरली साउथ पंजाब, यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग के काफ़ी चांसेस हैं, सिग्निफिकेंट चांसेस हैं कि यहाँ पे जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। शेखुपुरा, ननकाना साहब, ओकाड़ा, कसूर, चिन्योट, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी बारिश की इत्तलाआत मौसूल हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर में बारिशों के पेश नजर इंतजामिया, PDMA, वासा और दीगर मुतल्लिका इदारों की टीमें मुसलसल अलर्ट हैं। शहरों के मुख्तलिफ मकामात से नकासी आब को यकीनी बनाने के लिए मशीनरी और स्टाफ नशेबी इलाकों में मौजूद हैं। PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर दरियाओं और नदी नालों में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है, ताहम दरियाए सिंध में तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। मानसून बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा है। हंगामी सूरत हाल के पेश नजर जिले इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। शहरियों से अपील की गई है कि मानसून बारिशों के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और इमरजेंसी की सूरत में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर राब्ता करें। मानसून बारिशों का ये सिलसिला 17 जुलाई तक रहने की पेशगोई की गई है। अज़का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान ने दूसरी एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मुसलसल तीसरी कामयाबी समेटी है। थाईलैंड में जारी इवेंट में कौमी अंडर 16 टीम ने चाइनीज ताइपे को 3-0 से शिकस्त दी। मैच में पाकिस्तान की जीत का स्कोर 26-14, 25-14 और 25-16 रहा। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में कोरिया और दूसरे मैच में सऊदी अरब के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। कौमी अंडर 16 टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। आलमी नंबर 1 इटली के जैनिक सिनर का चौथा ग्रैंड स्लैम टाइटल विंबलडन चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। बर्तानिया में खेले गए टेनिस ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जैनिक सिनर ने दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्काराज को शिकस्त दी। सिनर ने अल्काराज को 4 सेट्स में हराया। सिनर ने पहला सेट 4-6 से हारने के बाद कमबैक किया और अगले 3 सेट्स 6-4, 6-4 और 6-4 से जीते। जैनिक सिनर का ये पहला विंबलडन ओपन जबकि मजमूई तौर पर चौथा ग्रैंड स्लैम एजाज है। अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप इंग्लिश क्लब चेल्सी फीफा क्लब वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। न्यू जर्सी में खेले गए फाइनल में चेल्सी ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन को 3 गोल से शिकस्त दी। PSG की टीम कोई गोल ना कर सकी। फातेह टीम ने तीनों गोल पहले ही हाफ में किए। कॉल पाल्मर ने 2 मरतबा फुटबॉल को जाल की राह दिखाई। पाल्मर ने खेल के 22वें और 30वें मिनट में गोल किए, जबकि एक गोल जोआओ पेड्रो के हिस्से में आया। पेड्रो ने खेल के 43वें मिनट में फातेह टीम की जानिब से तीसरा और आखिरी गोल स्कोर किया। चेल्सी का रवां सीजन में ये दूसरा बड़ा टाइटल है। इंग्लिश क्लब ने मई 2025 में कॉन्फ्रेंस लीग टाइटल जीता था। नाज़रीन, वर्ल्ड पुलिस गेम्स में पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल हासिल करने वाले बॉक्सर अली नवाज वतन वापस पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के बॉक्सर अली नवाज का वतन वापसी पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर AIG लॉजिस्टिक्स अब्दुल हक उमरानी और पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद ने शानदार अंदाज में अली नवाज को खुशामदीद कहा। कांस्टेबल अली नवाज ने अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड पुलिस गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने कहा कि अली नवाज ने आलमी सतह पर पाकिस्तान और इस्लामाबाद पुलिस का नाम रोशन करके सबके दिल जीत लिए। इस्लामाबाद पुलिस को अपने बहादुर और बासलाहियत जवान पर फख्र है। IG इस्लामाबाद ने अली नवाज को नकद इनाम और एजाजी शील्ड से नवाजा।
जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को पहले T20 मैच में 5 विकेटों से हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। हरारे में जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 141 रन बनाए। कप्तान सिकंदर रजा ने 54 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका के जॉर्ज लेंडे ने 3 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका ने 142 रन का हदफ 16वीं ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। रॉबिन हुरमन ने 45 और डेवॉल ब्रेविस ने 41 रन स्कोर किए। बहुत शुक्रिया रुमैया साहब का। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।